Hi students, now today's our topic is retirement of partnership firm, and the question number is sixth one, page number 179. Page number 179, question number 6. In that we can go for first of all profit and loss adjustment account. As you know, credit and debit, we have the two partner of source, and here also we can make two columns, and then partners capital account, debit side and credit side. Here also we have three partners and balance sheet. So now the partner name is Anil, Sunil and Suresh. Anil, Sunil and Suresh. Anil, Sunil, SUN, Sunil and Suresh. So that means retired partner name is Suresh. Suresh is the retiring partner. Creditors 20,300 we can write in the liability side. 20,300 because we don't have any adjustment, so we are writing to the liability side only. Bills payable 10,600 we also write here only. 10,600. Then general reserve we are distributed to the partners ratio, and profit loss ratio is equal. That means general reserve 13,500 we distribute in the same ratio. Then we can write by general reserve, and the 13,500 it is given here, so that means 4,500, 4,500, 4,500. $4,500, 4,500 and 4,500 means 13,500 is divided in 3 ratio, that is 4,500, 4,500, 4,500. This is 9 and plus 10, 13,500, right? So this is for general reserve distributed in among the partners. And bank it is given 8,400. Suppose we are writing here bank, we are writing supposed to here we maintain the two balance brought down. How much it is bank? 8,400 we are writing here in debit side. So capital Anil, Sunil, Suresh it is given, we write by balance brought down, and it is given 43,600. Sunil 35,000 and Suresh is 32,000. That means we are distributing to the partners all everything. Debtors it is given 18,400. So debtors we write 18,400, adjustment is there. Computer it is 17,400, we write computer 17,500. Land and building 70,000, land and building adjustment is there, yes. So we write land and building. How much amount is this? 70,000 we write in the inner column. Machinery 10,000 is given, machinery adjustment is there, yes, machinery adjustment is there. We write all adjustment in the inner column. So machinery we are supposed to write 10,000. Furniture 20,000 is given. Now for 20,000 furniture is there, so you can write 20,000 furniture adjustment is there. 20,000.
goodwill 12,000 is given, so we cannot write goodwill here now because we have adjustment of goodwill, then we can match it out. Goodwill लिखने की जरूरत नहीं है. So these all the things, and for the adjustment land and building appreciate by 10%. ये हम लोग ने एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले रिटायरमेंट सुरेश हुआ है, उसके पहले बैलेंस शीट की पोस्टिंग कर दी है. अब उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट 10% हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 10% अप्रिशिएट किया गया है, कंप्यूटर रिड्यूस बाय 1900 दिया है. तो नाउ लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 10%, दैट मीन्स इट इज प्लस, एंड फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट दैट प्लस विल बी टर्म टू लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट. सो 70,000 का 10% कितना हो जाएगा 7,000, और अमाउंट कितना आएगा 77,000. नाउ हियर विल एसेट डिक्रीज, liability increase, and here asset increase, liability decrease. So this 7,000 liability increase will come by land and building 7,000 will come. इसका दूसरा इफेक्ट 7,000 का आपका 10% का प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड में आएगा. नेक्स्ट इज कंप्यूटर रिड्यूस बाय 1900. कंप्यूटर का टर्म हो रहा है तो माइनस डिप्रिशिएट लिख देते हैं. 1900 से टर्म हो रहा है 1900, हम इसमें माइनस करेंगे तो इट विल कम 16,500, 15,600. कंप्यूटर एसेट्स कम हुआ टू कंप्यूटर. हाउ मच इट इज कंप्यूटर? इट इज कम. कंप्यूटर्स विल कम, अमाउंट विल कम 1900. We are right 1900 here. Next, debtors wares all good and already was no longer required. Now debtors 80,000 दिए हैं और already no longer required है. Debtors were all good, debtors अच्छे, तो उसमें ना already कुछ भी नहीं आएगा, नील हो जाएगा. और debtors से तो 18,400 आपका ऑर्डर में आएगा. Now already is a liability, तो पहले तो कितना था already 900, अभी नील जीरो हो गया, यानी लाइबिलिटी कम हो गई. लाइबिलिटी जब कम हो जाती तो यहाँ पे आता है बाय already. हाउ मच 900 मीन्स लाइबिलिटी इज डाउन, कम हुआ, एंड इट इज लेस, विल कम टू द प्रॉफिट एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड. ये याद रखने का. नेक्स्ट, मशीनरी वैल्यू इज 9,400. मशीनरीज वैल्यू इज देयर 9,400, तो माइनस डिप्रिशिएट हो गया. ऑलरेडी पहले मशीन कितना दिया था 10,000, अभी कितना हो गया 9,400, तो 600 क्या हुआ कम हुआ. तो हाउ मच इट इज कम 600 अमाउंट कम हुआ, तो 600 का आपको यहाँ पे आएगा टू मशीनरी. सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, मैं आपको एक दो पोस्टिंग बता रहा हूँ, उस तरह से आपको पोस्टिंग करना है. एंड देन आफ्टर फर्नीचर वर सोल्ड 21,800. फर्नीचर को बेच दिया 21,800 में. था कितने फर्नीचर 20,000 का, तो प्रॉफिट में बेचा 1,800. जब प्रॉफिट में कोई चीज़ बेचते हैं तो हम लोग प्रॉफिट एडजस्टमेंट की क्रेडिट से आएगा बाय सेल ऑन फर्नीचर, और अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट विल कम. कितना प्रॉफिट हुआ है, था कितना, इट वॉज 20,000, 1,800 प्रॉफिट हुआ है. ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे फर्नीचर दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यू नो अगर उसको बेच दिया है. आप लिख सकते हो सेल, हाउ मच इट इज 21,800, कुछ कम ज़्यादा हुआ ही नहीं. 1,800 क्या हो जाएगा प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को प्लस करो आप यहाँ पे. आप 18,000 प्रॉफिट कितना 1,800 को ऊपर बता दो, और बाद में इसको जो 20,000 को 100 करोगे तो वो माइनस सेल चला गया फर्नीचर. आप नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा. डोंट से फर्नीचर हियर, इट विल डायरेक्ट इफेक्ट टू द प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट हो गया. 15,000 RTGS से दिया है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS? सूर्य रिटायरिंग पार्टनर इज देयर एंड ही इज रिसीविंग द अमाउंट थ्रू RTGS, रियल टर्म ग्रॉस सेटलमेंट. RTGS मतलब एक तरह का पेमेंट सिस्टम होता है. NEFT एंड RTGS, ये दो चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन पेमेंट मोड होता है. तो RTGS अगर मान लो कर रहा है 15,000 तो सुरेश को मिल रहा है, तो सुरेश को जब मिलेगा तो यहाँ पे आएगा बैंक के थ्रू मिलेगा, तो टू बैंक आएगा, और सुरेश के कॉलम में 15,000 लोग लिखेंगे.
और अपने पास से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय सुरेश कैपिटल 15,000। इस तरह से आपका ये हो गया। एंड बैलेंस लोन बता दिया है, तो हम लोग बाद में बैलेंस उसको लोन बताएंगे। अब जैसे कि बैंक का कोई व्यवहार तो अभी इसमें है नहीं, तो बैंक को क्लोज करने जाओगे तो आपको 15,000 में 8,400 माइनस किया तो नहीं और भी आएगा, 15,000 तो आएगा ही ना। ठीक है, टैक्सी। तो सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे हम लोग, सारे पोस्टिंग सारे एडजस्टमेंट करने का सबसे पहले क्लोज करेंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं तो क्रेडिट का 9,700 आता है और डेबिट का 9,700 आना चाहिए, बट कम आएगा। तो अब इसमें से ये दोनों माइनस किए तो टू पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे, और वो अनिल सुनील में बढ़ जाएगा, क्योंकि अनिल सुरेश सुनील एंड सुरेश, और ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जब तीनों में बटेगा तो वो आएगा 7,200, और जब तीनों में बटेगा तो इक्वल बटेगा, दैट मीन्स 2,400 2,400 2,000। और ये जो प्रॉफिट है फिर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2,400 2,400 2,400। और उसके बाद जब वो ट्रांसफ़र वहाँ पे हो जाता है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले क्लोज करेंगे, क्योंकि बैलेंस पैसा बाकी का पैसा जो लोन किया है वो निकालने के लिए सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर क्लोज करेंगे। तो ये आएगा 14,400, 40,000 में। सॉरी एक चीज़ और बाकी है, गुडविल का मैं ज़रा बताना चाहूँगा। 12,000 गुडविल था, उसमें से 16,500 रुपया फॉर्म का है। तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, गुडविल आप लिखते हो एसेट में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 12,000। तो उसको एसेट में एक्चुअली बताना नहीं है, पर आप जरा सोचो गुडविल था कितना, पहली बात 12,000, अभी कितना है 16,500, तीनों का है, और ऊपर भी एसेट तीनों का दिया है। तो 16,500 माइनस 12,000 बिकम 4,500, एंड 4,500 क्या होगा, गुडविल आपस में बढ़ जाएगा। तो जब गुडविल आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आपको 16,500 यहाँ पे लिखना पड़ेगा गुडविल का अमाउंट, और 16,500 जब बढ़ जाएगा यू कैन डायरेक्टली शो टू दिस अमाउंट 4,500 टू द पार्टनर्स कैपिटल में, तीनों में बढ़ जाएगा। और जब तीनों में बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा बाय गुडविल, एंड व्हाट इज द वैल्यू विल कम 1,500 एंड 1,500। इट इज रिटेन इन द बिजनेस एंड इट इज अ सेकंड इफेक्ट शो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड। तो एसेट साइड में आपको पूरा बताना है जो एक्चुअल अभी का है। तो अब इसको जब क्लोज करेंगे तो इट विल कम 40,400, और डेबिट में 15,000 है, तो 14,400 माइनस 15,000 विल कम 25,400। इसको आप नाम दोगे लोन। किसका लोन, सुरेश का लोन, लोन ऑफ सुरेश। और ये अमाउंट का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी। बाकी ये दोनों अकाउंट क्लोज करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 43,400। अब इसमें से जो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इट विल कम 43,400। और इसका अगर जब अनिल का क्लोज करोगे तो 52,000 आएगा, और डेबिट में कुछ भी नहीं है तो अभी 52,000 से क्लोज होगा। इसका नाम आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इसका इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। क्या लिखेंगे हम लोग, अनिल कैपिटल एंड सुनील कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, एक का आएगा 52,000 और दूसरे का 43,400। तो इस तरह से वी आर शोइंग टू ऑल द थिंग्स विच इज बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न। और फिर हम लोग उसको टैली कर देंगे, तो टैली 1,51,700 में और 151,700 में आ जाएगा। तो इस तरह से
हम लोगों ने ये 6 वाला प्रॉब्लम कंप्लीट किया। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे फ़ोन करो, सॉल्व करो, और एक दो प्रॉब्लम करने के बाद ये अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो दैट मीन्स इफ़ एनी डिफ़िकल्टीज, इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज़ कॉल मी। और लाइन ड्रॉ करके सॉल्व करने की कोशिश करो, और सोल्यूशन भी आपके सामने है। दो इफेक्ट कैसे हो रहा है उसके बारे में जानकारी लो, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करो। पढ़ते समय मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा कि दो इफेक्ट कैसे हुआ है। सो ऑल दी बेस्ट, स्टे एट होम, एंड आवर रिटायरमेंट्स ओनली 1 या 2 लेक्चर में ही ख़त्म हो जाएगा, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बी स्टडी एट होम, ऑल दी बेस्ट।